Bismillah. Today's class is continuation of vector. Please see here. Already we have seen this is one vector, this is P, this is another vector Q. Sir, total angle is alpha. Sir, this is the resultant, and suppose this angle is beta. We have discussed two formula. Formula of magnitude. What is the formula? Sir, R square equal to P square, Q square 2PQ. Here is total angle. Please see here. This is the total angle. This is the total angle. This gives the, what is this? Sir, this is equal to root P square plus Q square plus 2PQ. This is cos alpha. This gives the magnitude. And second formula, what is this? Formula of the direction. Here we see this tan direction, what is the formula? Sir, tan beta. We have already discussed this beta. कौन फॉर्म किया है? सर, P is used to form this beta. उस टाइम क्या करने होगा? अदर कंपोनेंट से स्टार्ट करना होगा. व्हाट इज दिस? दिस इज द Q. Here is according to formula sin. Here is, sir, total angle. This is, be careful. This is very important. Sir, this is total angle, not this angle or this angle. What is this? Suppose this is the beta, phi, this is beta. In this case, next please come here. This is Q cos alpha, and here is what component? Which component? Sir, this is the beta. This is P. This is tan beta. Similarly, what is this? Sir, this is suppose tan phi. Which component is used? Sir, P is, Q is used. तो कौन सा स्टार्ट होगा? कौन सा तरह स्टार्ट होगा? सर, हेयर P से स्टार्ट होगा. P इक्वल टू साइन. अगेन सर, व्हाट इज द एंगल? सर, टोटल एंगल. दिस इज द टोटल एंगल. दिस इज P cos alpha and this is Q. These are the, this formula suppose A and this is B. These two formulae are used for the direction. We have already seen, sir, this formula. Now I am going to discuss a special case. What are the special cases? Suppose here R square equal to P square plus Q square 2PQ cos alpha. There are three special cases. First case, sir, R max. When, sir, R max, this is important. This is important when this cos alpha equal to plus 1. If it is plus 1, in this case, sir, this is P square, this is Q square, this is 2PQ, this is 2PQ into 1. Here is, what is this? Sir, this is P plus Q whole square. I am deleting this part. Please see here, I am deleting this part. So from here, what is the formula? Sir, R max equal to P plus Q. This is the special case. What is the figure? Sir, this is in this side plus C. Please see here cos alpha equal to plus 1. Here cos alpha equal to plus 1, alpha equal to 0 degree. Therefore, sir, this is the P, this is Q, resultant is in this side. Here, what is this? This resultant is R max and that equal to P plus Q. Second condition. What is the condition? Suppose I am considering alpha equal to 180 degree. This is, in this case, cos 180 degree. This is equal to minus 1. In this case, it is R minimum. What is this? R minimum. What is R minimum? This is P square, this is Q square, this is 2PQ, this is minus 1. This can be written like this. Sir, this is P minus Q whole square, or sir, this is Q minus P whole square. So from here, what is R min? R min equal to P by Q, or sir, it is Q minus P. What is the figure? You see, sir, this is P, here this is P and this is Q. What is this angle? Sir, this is 180 degree. In this case, P is greater. So what is this? This will be the resultant, and this resultant is R minimum. This is equal to, sir, P minus Q. Another figure you can see. Suppose, sir, this is Q, and this is P. In this case, sir, what is this? Sir, Q is greater. Resultant will be this side. This is R min.
again sir, this angle is, what is this angle? Sir, this angle equal to 180 degree. In this case, R main equal to what? R main equal to sir Q minus P. Okay. This is one case, sir. R max, when R max, sir, it is important to keep in mind, sir, alpha equal to 0 degree, where R minimum, when R minimum, this is alpha equal to 180 degree. Okay. Another special case that is very important, sir, when alpha equal to 90 degree, please see here, cos alpha, cos 90, how much? Cos 90 only, sir, 0. In that case, what is this? Sir, R square equal to P square plus Q square. This part is 0. From here, please see, in this case, this relation is important. I am deleting this part. This part is very important. Suppose, sir, this is 5 square, this is 3 square, this is 4 square. Another this, sir, this is 10 square, this is 6 square, this is 8 square, this is 13 square, this is what is, this is 5 square, this is 12 square, like this. This is very important, please keep in mind. Okay, now I am going to discuss a special case. What is a special case? Please see. A special case. What is the formula? Sir, R square equal to P square plus Q square 2PQ cos alpha. Depending on alpha, alpha has a 3 value, alpha equal to 0. In this condition, sir, this is max and this equal to, sir, P plus Q. Second condition, sir, alpha equal to 90 degree. In this case, R square equal to, sir, P square plus Q square. And third case, sir, alpha equal to 180 degree. This is R minimum. What is this? Sir, this is P minus Q, or sir, this is R equal to, R main equal to, sir, Q minus P. When this is, in this case, P greater than Q, or this is Q greater than P. These are the 3 special conditions. Okay. Now, here is one important rule. Suppose under a body, this is a body, in this case P1, in this case P2, in this case, sir, P3. In this case, P1, P2, P3, all the 3 forces. These are P1, P2 and P3 forces. Under these forces, this body at rest. This is the body at rest. This is the body at rest or in equilibrium. What is or what are the conditions? क्या conditions पर ये body rest रहेंगे? Please see here, this P1 and P2 का resultant क्या होगा? This should be, I am writing like this, this should be equal and opposite to the P3. What is the answer? Answer is, sir, P3 should be equal and opposite. This is the equal sign and this is the opposite sign. In that case, the body will be at rest. Another thing is important, sir, this is P2 and this is P3. Their resultant should be like this. What is this? Sir, this is P. You can write, sir, direction also. In this case, P23. This P23 किसको बैलेंस करेंगे? सर, इसको बैलेंस करेंगे. So what is this? सर, P1 equal to P23. P23, this is negative. Another thing is important, P3 and P1, ये लोग का resultant क्या होगा? सर, this is the 3-1. ये किसको बैलेंस करेगा? P2 को बैलेंस करेगा. What is this? सर, P2 equal to P3-1. In this case, in 3 conditions, what is the language? Language is out of the 3 forces, the resultant of any 2. Language क्या है? What is the language? Resultant of any 2 vectors or forces should be, this is important, should be equal and opposite. This is important, equal and opposite to the third vector, but third force. This is important, third force or vector. This is the rule. In this case, body will be at rest. In this case, body will be at rest.
Be careful. Under three forces, body will be at rest. What are the conditions? This the resultant of any two forces should be equal and opposite to the third. Another thing, these three forces P1, P2 and P3 will act साइमल्टेनियसली, एक साथ इस बॉडी के ऊपर कम करना है, एक साथ कम करना, सेम बॉडी के ऊपर कम करना है एंड एक साथ साइमल्टेनियसली. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट. P1 एंड P2 एक्टिंग, बाद में P3 कम करेगा नहीं. P1, P2, P3 all three forces will act simultaneously and the resultant of any two forces should be equal and opposite to the third force. In that case sir body will be at rest. This language पर बॉडी कहाँ पे रहेंगे? रेस्ट पर. ओके. Now I am considering one case, very important. Sir, this is R maximum, this is variable resultant, any resultant, variable resultant, any resultant, be careful, this is any resultant. This should be greater than or equal to sir R min. What is this? सर मैक्सिमम वैल्यू, ए वाला मिनिमम वैल्यू, उसका अंदर एनी वैल्यू, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द एनी रिजल्टेंट, दैट इज रिजल्टेंट का कोई भी वैल्यू इस दोनों का बीच में रहेंगे, इस दोनों का बीच में रहेंगे. नाउ आई एम गिविंग 3, आई एम गिविंग, प्लीज हियर देखो, ए बॉडी के अंदर, ए बॉडी is at rest, when number 1 इसके ऊपर 10 कम कर रहे हैं, इसके ऊपर सर 12, 15, इसके ऊपर 30 कम कर रहे हैं, इसके ऊपर सपोज यहाँ पे आई एम टेकिंग 35, this is 20 and is here is 10 and fourth catch is, suppose this is 50, this is 10, this is 10, this is 10 और ये क्या होगा सर? suppose here 5 Newton. What are the rules here? R max and R min का अंदर कौन रहेगा? Any resultant. Please see here. Which one is correct? A body is at rest when this is one set of forces or vectors, this is another set of forces or vector. Just please see, in this case what is the R max? R max should be R is the, this is any value of the resultant, this should be in between maximum and minimum. Please see here, इस दोनों का maximum value कितना? Sir, maximum, this equal to sir P plus Q, this is sir 10 plus 10 equal to 20. In this case R minimum, that is very very important. What is this? Sir, this is P minus Q. What is this? 10 minus 10, that equal to 0. Now see here, इस दोनों का maximum value कितना? 20. इस दोनों का minimum value कितना? 0. थर्ड क्या होगा? थर्ड होना चाहिए इस दोनों का बीच में, इस दोनों का बीच में थर्ड वेक्टर कितना है? सर 0 से 20 का बीच में, दिस इज 10. इन दिस केस इस दोनों का रिजल्टेंट इसको बैलेंस करेंगे, इसलिए दिस बॉडी विल बी एट रेस्ट. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ प्लीज सी हियर इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना? 12 प्लस 15 27. मिनिमम वैल्यू कितना? मिनिमम वैल्यू सर दिस माइनस दिस 3. तो इस दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कितना? सर आर मैक्स 12 प्लस 15, दिस इक्वल टू 27. और इस दोनों का मिनिमम वैल्यू कितना? प्लीज सी हियर सर दिस इज 15 माइनस 12 इक्वल टू 3. इस दोनों का अंदर थर्ड वेक्टर होना चाहिए, इसका बाहर नहीं है, तो ये सतह से बाहर हो गया, इसका मतलब देयर विल बी रिजल्टेंट. आफ्टर सपोज इस 27 और 3 का बीच में ए है, तो ये 30 को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये वाला बॉडी चलते रहेगा. यहाँ पे देखो इस दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कितना? दिस प्लस दिस 55. मिनिमम वैल्यू कितना? 15. तो 55 एंड 15 का अंदर ए नहीं है. व्हाट इज दिस सर? 55 एंड इसका माइनस करने से 15. इस दोनों का बीच में इसको होना चाहिए, बट ये क्या कर गया? ये जो है इससे
बाहर चला गया तो ये नहीं बैलेंस करेंगे। इधर देखो व्हाट इज दिस सर, दे वाला 50 ये वाला 10, दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कितना 60, मिनिमम वैल्यू कितना 40, तो इस दोनों का बीच में ए नहीं है। इन दिस केस ए वाला बॉडी चलते रहेगा, ए चलते रहेगा, ए चलते रहेगा, ए वाला जगह पर बॉडी रेस्ट होगा। आई एम कंसिडरिंग another case. I am considering another case. Please see here. In this case, we have the, what is the rule? Sir, R minimum less than R less than equal to R max. Okay. In which case a body will be in motion. In which case a body will be in motion. Please see here. Number 1. Sir, this is 17. ये वाला कंडीशन देखना है। कुछ in which case body will be at rest. In motion. देखो ये वाला, suppose I am taking 5, I am taking 23, I am taking, suppose this is 30, this is 30. In which case body will be in motion. Please see here. Third case, this is 45, this is 30, and in this case I am taking, sir, 20. And fourth case, suppose this is 7, this is 8, and this is suppose 14. Please see here. In which case body will be in motion. क्या meaning? What is the meaning? Ultimate resultant क्या होगा सर? नॉट इक्वल टू 0. जब अल्टीमेट रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0, इन दिस केस बॉडी इन मोशन. जब फाइनल रिजल्टेंट इज 0, उस टाइम क्या होगा सर? बॉडी रेस्ट पर होगा. नाउ प्लीज सी हियर, इस दोनों का मैक्सिमम कितना? 25, 25, दिस प्लस दिस 25, मिनिमम कितना? 5. तो 5 एंड 25 के बीच में ए है. देखो ए वाला क्या चीज़ है? ए वाला इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना? मैक्सिमम वैल्यू 25, मिनिमम वैल्यू कितना सर? दिस इज 5. प्लीज सी, इस दोनों को ऐड कर दो, 15 और 10, 25 माइनस करो सर, दिस माइनस इज 5. इस दोनों का बीच में 7 है, 17 है. यस, तो इन दिस केस सर बॉडी विल बी एट सर रेस्ट. ये वाला रेस्ट पर रहेगा, ये चलेने का नहीं. इस दोनों का क्या मैक्सिमम केस है? इस दोनों का मैक्सिमम केस है. इस दोनों का देखो, इस दोनों का मैक्सिमम क्या है सर? मैक्सिमम दिस प्लस दिस सर, दिस इज 28. मिनिमम कितना? इसका माइनस करो तो क्या होगा सर? दिस इज 18. इस दोनों का बीच में ये वाला है सर? नहीं है, ये मैक्सिमम से ज़्यादा हो गया. उस टाइम क्या होगा? इन दिस केस बॉडी का ऊपर रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0. इन दिस केस ये बॉडी चलते रहेगा. इन दिस केस देखो, इस दोनों का मैक्सिमम कितना? इस दोनों का मैक्सिमम कितना सर? मैक्सिमम दिस प्लस दिस सर, दिस इज 75. मिनिमम कितना? इससे से माइनस करो 15. तो इस दोनों का बीच में ये है. यस सर, इस टाइम क्या होगा सर? रिजल्टेंट 0, तो बॉडी रेस्ट पर रहेगा. इस दोनों का देखो, इस दोनों का मैक्सिमम कितना सर? मैक्सिमम 15 और मिनिमम कितना? दिस माइनस दिस सर, दिस इज सर मैक्सिमम एंड दिस इज 1. तो इस दोनों का बीच में क्या है सर? इस दोनों का बीच में सर 14 है. इसलिए यहाँ पे भी r इक्वल टू 0, यहाँ पे r इक्वल टू 0, यहाँ पे r इक्वल टू 0. कैसे सर? 5 एंड 25 के बीच में 17 है, तो ये कैंसिल करेगा. इस दोनों का 18 एंड 28, इन दिस केस इस दोनों का बीच में नहीं है. थर्ड इसका बाहर चला गया. इसका मतलब क्या है? ये रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज द आंसर. ओके, I am giving another question. Please see here. This is very important question. Here no need of full calculation. We have to consider, this is the concept, R minimum less than or equal to R and R less than or equal to R max. This R
ये वाला इधर जाएगा, जब इधर जाएगा उस टाइम व्हाट इज दिस सर, दिस इज p माइनस क्यू, व्हाट इज दिस सर, दिस इज p प्लस क्यू। तो इधर जब जाएंगे तो उस टाइम क्या होगा सर, p माइनस क्यू, और इस साइड जब जाएगा सर दिस इज p प्लस क्यू। कैसे मैक्सिमम कैलकुलेट किया जाए सर, p प्लस क्यू, मिनिमम कैसे कैलकुलेट किया जाए, p माइनस क्यू, और दिस इज द एनी रिजल्टेंट। एनी रिजल्टेंट जब दोनों का बीच में होगा तो उस टाइम सर क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर और रिजल्टेंट फोर्स शुड बी जीरो। ओके, और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, बॉडी रेस्ट पर रहेगा। इन दिस केस क्या चीज़ है, क्वेश्चन क्या पूछा है, इन व्हिच केस ए बॉडी विल बी इन मोशन, बी केयरफुल, विल बी इन मोशन मीन्स आर अल्टीमेट आर not equal to 0, ultimate resultant not equal to 0. Please I am repeating again, please see here, इस दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कितना, दिस प्लस दिस 25, इस दोनों का मिनिमम वैल्यू कितना सर, दिस माइनस दिस इज 5, इस दोनों का बीच में है सर, रिजल्टेंट इक्वल टू 0। प्लीज सी हियर, इस दोनों और इसका मैक्सिमम वैल्यू 75, मिनिमम वैल्यू कितना 15, तो इस दोनों का बीच में ए है, यस सर, तो ए भी रिजल्टेंट 0। यहाँ पे इस दोनों का मैक्सिमम वैल्यू दिस प्लस दिस 15, मिनिमम वैल्यू दिस माइनस दिस, तो इस दोनों का बीच में ए है सर, इसका जगह पर इसका सर अल्टीमेट आर अल्टीमेट इक्वल टू सर 0, इसका आर अल्टीमेट इक्वल टू 0 एंड इसका आर अल्टीमेट इक्वल टू 0। इस तीनों कंडीशन पर बॉडी रेस्ट पर रहेगा, और इस कंडीशन पर सर दिस इज इन दिस केस सर आर अल्टीमेट, दिस आर अल्टीमेट नॉट इक्वल टू 0 मीन्स बॉडी विल बी इन मोशन। ओके, आई एम गिविंग another example. Please see here, simple question, when a body will be at rest, what is the meaning sir, r ultimate equal to sir 0. This is the condition. I am taking four condition, four set of forces or four set of vectors sir, r equal to 0. I am taking, suppose this is 17, this is 30, this is 31. I am taking sir, this is 18, this is 2, and I am taking this is 18, this is suppose 25. I am taking sir, this is 30, this is 30, and this is also 30. I am taking sir, this is 50, and this is 5, and this is 60. Please see, when a body will be at rest means ultimate resultant should be 0. इधर देखो, व्हाट इज दिस, इस दोनों का मैक्सिमम मिनिमम कितना सर, मैक्सिमम दिस प्लस दिस 30 एंड मिनिमम सर दिस माइनस दिस, व्हाट इज दिस सर, इसका क्या होगा सर 30 इधर एंड मिनिमम कितना सर, मिनिमम दिस माइनस दिस 4, इसका बीच में सर ये है सर, नहीं है, इसका मतलब ये आर नॉट इक्वल टू आर अल्टीमेट नॉट इक्वल टू 0। अगेन प्लीज सी द एक्सप्लेनेशन, इस दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कितना, दिस प्लस दिस 30, इस दोनों का मिनिमम वैल्यू कितना 4, इस दोनों का बीच में ये है सर, नहीं है, तो इसलिए क्या है आर नॉट इक्वल टू 0, तो बॉडी चलते रहेगा। इस दोनों का क्या है 20, दिस प्लस दिस, इस दोनों का कितना है सर, दिस इज 6, दिस इज मिनिमम 16, मैक्सिमम कितना सर, मैक्सिमम 20, इस दोनों को ऐड करो 20 होगा, मिनिमम कितना माइनस करो, इस दोनों का बीच में ए है, नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे सर आर अल्टीमेट नॉट इक्वल टू 0। इधर देखो, इस दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कितना, इस दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 60, मिनिमम वैल्यू 0, तो इस दोनों का बीच में 30 है सर, यस, तो इन दिस केस व्हाट इज दिस सर, आर अल्टीमेट इक्वल टू 0, तो बॉडी विल बी एट रेस्ट। दिस इज द आंसर। इन दिस केस देखो, इस दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कितना सर, मैक्सिमम वैल्यू 55, मिनिमम वैल्यू कितना सर, दिस इज 45, तो ये 12 से बाहर हो गया, तो इन दिस केस सर आर अल्टीमेट नॉट इक्वल टू 0, तो चलते रहेगा। व्हाट इज दिस सर, दिस इज द आंसर। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस another question. Please see here.
In this case, suppose I am going to discuss multiplication of two vectors. Please see here, multiplication. In this case, this multiplication of vectors, these are two. One thing is, sir, dot product. मल्टीप्लिकेशन अनदर लैंग्वेज क्या है सर? ये वाला, इसको प्रोडक्ट बोला जाता है। तो एक नाम है डॉट प्रोडक्ट। इसका अनदर नेम इज सर स्केलर प्रोडक्ट। व्हाई सर स्केलर प्रोडक्ट? प्लीज सी। अनदर इज सर दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अनदर नेम सर वेक्टर प्रोडक्ट। दिस इज व्हाई सर? प्लीज सी हियर। इन दिस केस सर दिस इज one vector, this is A and this is another vector B. डॉट प्रोडक्ट इसका मतलब क्या है? इसको डिनोट करना है डॉट साइन। इसका जब मल्टीप्लाई किया है तो उसको जो रिजल्ट, इस दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज सी। दिस सी इज ए स्केलर हेयर, इसीलिए सर हेयर नो एरो साइन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। दिस इज द dot symbol and this is the scalar quantity. These are the basic of this dot product. क्या चीज़ है सर? दोनों वेक्टर है। दोनों वेक्टर को जब डॉट प्रोडक्ट किया तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? स्केलर। इसलिए इसका ऊपर एरो नहीं दिया गया। ओके, डॉट साइन, डॉट सिंबल, डॉट प्रोडक्ट। रिजल्टेंट इज ए स्केलर, तो इट इज a scalar product. Here what is this? Suppose I am taking this is A vector and sir this is B vector, and in this case sir इसको, इस दोनों को कैसे लिखा जाता है सर? A क्रॉस B। here क्रॉस symbol is used, तो इसीलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो वेक्टर है, तो इसीलिए सर दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस सर? ए डॉट साइन से लिखा गया तो डॉट प्रोडक्ट। रिजल्टेंट क्या है? स्केलर है, इसीलिए ये क्या चीज़ है सर? स्केलर प्रोडक्ट। ये कौन सा चीज़ है सर? यहाँ पे दोनों वेक्टर है, उस दोनों को मल्टीप्लाई किया बाय क्रॉस सिंबल, तो इट इज़, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ मिलता है रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट क्या है? वेक्टर है, इसलिए इसके ऊपर एरो दिया गया, यहाँ पे नो एरो। सिंस इट इज़ द वेक्टर, देयरफॉर इट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट। आई थिंक इट इज़ क्लियर। दिस सी को लिखा जाता है, व्हाट इज दिस? दिस सी को लिखा जाता है, व्हाट इज दिस? ए डॉट बी। इसको लिखा जाता है ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? दिस इज द थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। इन दिस केस क्या चीज़ लिखा जाता है? इन दिस केस प्लीज सी हियर, सी वेक्टर, इसको लिखा जाता है सर ए क्रॉस बी। दिस इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, हेयर विल बी सर साइन थीटा। व्हाट इज दिस थीटा sir? This is the theta and here is n cap. What is n cap? जिसके ऊपर कैप दिया जाता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ये यूनिट वेक्टर, बट दिस यूनिट वेक्टर अननोन यूनिट वेक्टर, इसीलिए इसको n से लिखा जाता है। सिंपल, इसको याद कर लो, ए बी साइन थीटा। दिस पार्ट आई एम राइटिंग हियर, प्लीज सी वेक्टर इक्वल टू ए cross B, this equal to sir what? AB sin theta sir n cap. This portion gives the magnitude and this gives the direction. sir किसका direction? ये C का magnitude देता है और ये देता है C का direction. Please see here.
वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग. कैसी चीज़ है? सी वेक्टर हैज़ 3 पार्ट. व्हाट इज दिस? सर दिस इज इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका सर डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन होता है. अनदर थिंग होता है सर इसका यूनिट. मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला? सी का मैग्नीट्यूड इसको मॉड का अंदर लिखा जाता है. व्हाट इज द फार्मूला? ए बी साइन थीटा. इसको याद कर लो, ए बी साइन थीटा. इसको डायरेक्शन क्या है? सर सी का डायरेक्शन, दिस इज दिस डायरेक्शन and this direction are parallel to each other. Here is important part. This C vector A vector का ऊपर perpendicular है. I am giving the figure. What is this? Sir, this is A vector and this is B vector. इधर से इधर एंगल लिया गया. तो what is this? इस दोनों क्या चीज़ है? सर इस प्लेन के ऊपर है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर ही है. दिस परपेंडिकुलर का 2 डायरेक्शन होता है सर, दिस साइड एंड दिस साइड. आई विल टेल. फर्स्ट थिंग सर, सी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी और सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. फर्स्ट थिंग, दिस इज सी, दिस इज बी. अनदर लैंग्वेज क्या है? अनदर लैंग्वेज क्या है? सर हेयर एन कैप, this is also perpendicular to A vector, n cap is perpendicular to B vector. Another language, क्या language? Sir, C vector C perpendicular to the plane. Plane किस कौन से प्लेन है? जिस प्लेन पर A and B मौजूद है. What is this? C is perpendicular to the plane कंटेनिंग. इसका मतलब क्या है? जिस प्लेन पर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है. क्या चीज़ है? जिस प्लेन पर ए एंड बी है उसका परपेंडिकुलर. इन दिस केस प्लीज सी हियर, ए वेक्टर बी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, उसका परपेंडिकुलर दिस है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अनदर पार्ट इज इंपॉर्टेंट. अनदर पार्ट इज इंपॉर्टेंट. इस परपेंडिकुलर लाइन है तो ई साइड होगा और अंदर होगा. हियर इज वन रूल. दैट रूल, व्हाट इज द रूल? प्लीज होल्ड दिस परपेंडिकुलर लाइन बाय राइट हैंड एंड बेंड्स दिस फिंगर. ये फिंगर को ऐसे बेंड करो. कहाँ से? यहाँ से ए से बी गया तो ए से बी करने से थंब इनसाइड होगा. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको सी को यहाँ पे इनसाइड होगा तो इसको हम लोग क्रॉस से लिखेंगे. क्या चीज़ है? ये इनसाइड है. आई एम टेकिंग अनदर थिंग. प्लीज सी हियर. सपोज here is A and this is B, but I am taking angle in this side from here to here. Can you tell me? यहाँ पे सर जिधर से स्टार्ट होता है उस वेक्टर को आगे लेना है, पहले लेना है. तो B क्रॉस A, तो इधर क्या होगा सर? B A साइन थीटा इंटू सर एन कैप. ये की चीज़ है? दिस पोर्शन गिव्स द मैग्नीट्यूड. ए वाला मैग्नीट्यूड, ए वाला डायरेक्शन. प्लीज डायरेक्शन का दिस वेक्टर को हम लोग, आई एम टेकिंग, दिस इज सी. तो व्हाट इज सी का डायरेक्शन किधर है? आई एम टेकिंग लाइक दिस. प्लीज इस परपेंडिकुलर लाइन, इस दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन, उसको राइट हैंड से पकड़ लो और बेंड करो. ये फिंगर को बेंड करो जहाँ से स्टार्ट हुआ. कहाँ से स्टार्ट हुआ सर? बी से स्टार्ट हुआ तो थंब आउटसाइड होगा. इसको डॉट साइड से लिखो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसको याद कर लेना. नाउ हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी स्पेशल पार्ट. दिस इज यूनिट वेक्टर. फर्स्ट थिंग, इसका सर मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड सर 1 होगा. इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. इसका सर डायरेक्शन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये डायरेक्शन के बारे में सर एलोंग और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको सर आई कैप से लिखा जाता है. बीच में क्या? सर एलोंग और पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसको क्या चीज़ से लिखा जाता है सर? जे कैप. थर्ड क्या चीज़ है सर? एलोंग और
पैरेलल टू सर जेट एक्सिस। इसको क्या चीज़ से लिखा जाता है, स्मॉल के कैप। ओके, नाउ अनदर थिंग सर एक्स वाई जेड, जब ये वाला छोड़ के सर अनदर थिंग दैट इज आई एम गिविंग 3 स्टार, दिस इज सर एन कैप। इसका नाम क्या है सर, अननोन यूनिट वेक्टर, unknown unit vector. My question is which is unknown, which is unknown sir, इसका direction unknown। यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसका डायरेक्शन अननोन, डायरेक्शन इज अननोन। इसको याद कर लेना, याद कर लेना, which is unknown। नाउ सिंस ऑल आर यूनिट वेक्टर, तो इसका क्या लिखा जाता है सर, आई कैफ मॉड सर, दिस इज j cap sir, this is k cap and this equal to n cap, all equal to sir 1। I cap, j cap, k cap, n cap all are within mod, means इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, 1 होगा। I am going to draw the figure, please see। इसको कैसे याद करें, इसको ऐसे याद कर लेना सर। सर दिस इज आई एम टेकिंग x axis, this is y axis and this is z axis। ई साइड में कितना होगा, ई साइड में i का ये वाला x है, ये वाला y है, ये वाला z है, तो आइदर दिस और दिस और दिस याद कर लेना सर। इसका पैरेलल, ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, तो ए भी आई कैप है, ए भी आई कैप है। प्लीज सी, पैरेलल टू एलोंग एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसको आई से, आई को कैसे लिखा जाए, एक्स, ऐसे क्या चीज़ है, ए वाला दिस इज जे कैप, पैरेलल टू दिस इट इज ऑल्सो जे कैप, पैरेलल टू दिस इट इज ऑल्सो जे कैप। इन दिस केस दिस इज के कैप, दिस इज के कैप and also this is k cap। please be careful, along or parallel to x axis I cap, along or parallel to y axis j cap, along or parallel to z axis इसको बोला जाता है k cap। okay, now suppose x into I cap, what is this, in this vector suppose a vector this is a, इसको कैसे लिखा जाए, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड x, इसका डायरेक्शन किधर है सर, अलोंग x एक्सिस, मैग्नीट्यूड x, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस और सर पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली सपोज b वेक्टर, ये क्या है सर, दिस इज y j कैप, तो इसको क्या लिखा जाता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है सर, इसका मैग्नीट्यूड सर y है। ओके, नाउ बी केयरफुल, सपोज आई एम गिविंग दिस रूल, व्हाट इज दिस, i डॉट i कैप, व्हाट इज दिस, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, व्हाट इज द फॉर्मूला सर, हेयर कॉस कितना, दोनों का बीच में कितना एंगल, ये इधर है इधर है, एंगल कितना 0 डिग्री, व्हाट इज दिस, दिस 0 इक्वल टू 1। Similarly, what is this? Sir, this is j cap dot, this is j cap 1 into cos कितना सर 0 डिग्री 1, सर k cap, this is k cap 1 into 1 cos कितना सर 0 डिग्री, this is equal to 1, this is 1। This part is very very important, another part is here, please see here sir, I dot j, what is this, I dot j cap, this is 1 cos how much sir, this is I, this is j, I and j कितने एंगल sir, this angle is 90 degree, cos 90 degree equal to 0, this is 0। okay, similarly j, here is k, what is this sir, 1 cos कितना sir, cos 90 degree, again 0। okay, similarly you can write sir k, this is I, this is equal to 1 into 1 cos sir 90 degree equal to sir again 0। okay, but this is again 0। next part is very very important,
next part is important. Suppose I am going to give this part. What is this? Sir, I cross I. What is the meaning? Sir, this is 1, this is 1. I का अंदर कितने एंगल? This is sine 0 degree. You can write this n cap. But since this sine 0 equal to 0, whole thing is 0. Similarly, what is this? This is j cap cross j cap. This is equal to 1 into 1. Sine कितना? Sir, j का अंदर एंगल? Sir, 0 degree. This is n cap equal to 0. What is this? This is k cap cross k cap. This is equal to what? 1 into sine. Sir, 0 degree, n cap again equal to 0. This is one important set. Another thing is very important. This set is very important. This is I cap cross j cap. Here, this is 1, this is 1, this is sine 90 degree. And here is n cap. Sir, this part, sir, 1, 1, 1, 1. This is n cap. Can you tell me? In this case, this n cap is unknown. No, this n cap is known. कैसे नोन? सर ए वाला आई है, ए वाला जे है, ए वाला आई है, ए वाला जे है, तो उसका परपेंडिकुलर कौन है? उसका परपेंडिकुलर, दिस इज आई, दिस इज जे, परपेंडिकुलर कौन है? ऐसे इसको पकड़ लो तो इसका परपेंडिकुलर इधर होगा, तो उस टाइम क्या होगा? सर दिस इज सर आई जे, तो ए वाला क्या होगा? के कैप होगा. सिमिलरली प्लीज सी हियर, जे क्रॉस के, इसके ऊपर कौन होगा? जे के, तो ये आई होगा, आई होगा. और इधर क्या है? के क्रॉस सर आई कैप, दिस इज क्या होगा? के आई जे के, जे के आई, के आई कौन होगा? के आई कौन होगा सर? जे कैप होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन ए स्पेशल थिंग. A special thing, please see here. Suppose here is a, this is x1, y1 and z1. इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1. इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, सर ये वाला z2. क्या चीज़ है सर? इसका यहाँ से ये वाला चीज़ को यहाँ पे ओरिजिन लो, तो ये वाला सपोज P है, ये वाला O है और ये वाला Q है. तो व्हाट इज दिस सर? ये वाला Q है. हेयर OP इसको पोजीशन वेक्टर बोला जाता है. तो इसका क्या रूल है सर? ये x का साथ I कैप देना, y का साथ ये वाला x1 है तो उसका साथ I कैप देना, y का साथ सर j कैप देना, एंड सर ये वाला z1 इसका साथ k कैप देना. OQ क्या की चीज़ है? OQ इसका ए वाला जो P वेक्टर OP, दिस OP को ऐसे सिंपल P वेक्टर से लिखा जाता है. देयरफॉर सर P वेक्टर दैट इक्वल टू OP, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा सर? x, ये जो कोऑर्डिनेट है x का साथ I देना, y का साथ j देना, z का साथ k देना. सिमिलरली सर व्हाट इज दिस सर? दिस इज q वेक्टर. इसको कैसे लिखा जाता है सर? इसको x2 I कैप, सर y2 सर j कैप, एंड सर z2 सर k कैप. ओके, नाउ हेयर क्वेश्चन इज PQ को कैलकुलेट करना. PQ वेक्टर, इस PQ वेक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है सर? दिस इज P, दिस इज PQ. नाउ प्लीज सी हियर, ये वाला P वेक्टर है, ये वाला Q वेक्टर है. नाउ अप्लाई द ट्रायंगल लॉ. सर दिस एंड these are taken in same order. Sir, this plus this meaning triangle law. What is the triangle law? This is very important. Sir, here vector P plus vector Q इस दोनों एक ही ऑर्डर पर है, तो टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, दैट इज द सर रिजल्टेंट. प्लीज सी हियर, दिस P वेक्टर ए वाला एंड PQ वेक्टर ए वाला, इस दोनों आर इन सर सेम ऑर्डर, दिस सेम ऑर्डर. थर्ड साइड टेकन इन
रिवर्स ऑर्डर, जो थर्ड साइड है ऑपोजिट ऑर्डर पर जो है वो रिजल्टेंट क्या काम करेगा। ताहले व्हाट इज द फॉर्मूला फ्रॉम हियर, पी क्यू इक्वल टू पी वेक्टर पी क्यू वेक्टर दैट इक्वल टू क्यू माइनस पी। नाउ प्लीज सी हियर, इसको कैसे पुट करें, कैसे लिखा, आई एम डिलीटिंग दिस पार्ट। क्यू का क्या चीज़ लिखा है, क्यू का क्या फॉर्मूला, दिस इज द एक्स टू आई कैप, ये वाला लिख लेना सर, एक्स टू आई कैप सर, वाई टू सर जे कैप एंड सर यहाँ पे सर जेड टू के कैप। इससे किसको माइनस करना, पी वेक्टर का। तो पी वेक्टर क्या है सर, इधर सीधे आई एम डिलीटिंग दिस पार्ट, I am deleting this part. What is this? This equal to x1 I cap, sir, y1 j cap, sir, it is z1 k cap. Okay. Now माइनस करने का रूल है, i का साथ i माइनस करना, j का साथ j, k का साथ k. According to that sense क्या चीज़ है, x2 माइनस x1 ये वाला I cap, ये वाला what is this, y2 minus y1, this is sir j cap, and z2 minus z1 sir, this is k cap. Okay, this is the rule. What is the formula, pq को निकालना है तो what is this sir, q vector minus p vector. तो you can write directly in case of any competitive exam, in case of MCQ type of question डायरेक्ट करना सर, Q का कोऑर्डिनेट x2 ये आगे है, ये बाद में है, तो P क्या है, P क्या है x1 y1 z1, सिंपल x2 माइनस x1 I ये वाला ऐसे करके लेना। सपोज इन दिस केस क्वेश्चन पूछा गया है सर QP को करना, तो QP को निकलना, तो व्हाट इज दिस Q, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज QP, तो P फर्स्ट लेना, दिस इज Q लेना। प्लीज सी हियर, यहाँ पे PQ है, जो लास्ट है उसको आगे लेना, तो Q माइनस P। सिमिलरली हियर QP है, लेना है किसका सर, पहले P उसका बाद Q, तो व्हाट इज द आंसर, P का कितना है, P का जगह x1 है, तो व्हाट इज दिस, आई एम राइटिंग डायरेक्टली x1 माइनस x2, व्हाट इज दिस सर, दिस इज I कैप प्लस सर y1 minus y2 सर j cap, I am deleting this part, I am deleting, and third part क्या है सर, z1 minus z2 सर k cap, this is the rule. Another thing is important, this is very important सर, here इसका ये वाला सपोज p दिया है, इसका कोऑर्डिनेट x y z दे दिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट p, इसका लिखा जाता है OP, इसका लिखा जाता है P, एंड और अनदर चीज़ से इसको लिखा जाता है, दिस इज R, तो इसको क्या चीज़ से लिखा जाता है सर, R OP वेक्टर, P वेक्टर, R वेक्टर। इसका क्या फार्मूला, R इक्वल टू सर x I कैप सर y j कैप एंड सर दिस इज सर z k कैप। दिस इज द वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना, उस वेक्टर, इस लेंथ का क्या फार्मूला, इस लेंथ का फार्मूला इसको याद कर लेना सर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सर, दिस इज z स्क्वायर, दिस इज z स्क्वायर, इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम गिविंग वन स्पेशल क्वेश्चन एंड दिस इज very इंपॉर्टेंट। सपोज ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज 7, दिस इज 7, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज 3। तो यहाँ पे कुछ पूछा गया ए क्रॉस बी इसका कितना, और ऐसे चीज़ दिया, क्या चीज़ दिया, इसका कितना है, ये वाला कितना है, एंड इन दिस केस यहाँ पे ए बी ए वाला दे दिया, एंड इन दिस केस ए बी ए दे दिया, एंड ये लोग का जो रिजल्टेंट, दैट रिजल्टेंट इक्वल टू सर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 10 दिया, दिस इज very इंपॉर्टेंट। इस दोनों कैसे लिखा गया सर, ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग सर, ये दोनों कंपोनेंट है, उसका
रिजल्टेंट सी है, इस दोनों का मैग्नीट्यूड ए दे दिया, इसका मैग्नीट्यूड ए दे दिया। इस टाइम क्वेश्चन पूछा गया ए डॉट बी कितना एंड ए क्रॉस बी कितना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन, प्लीज। ए वाला कितना, क्या फॉर्मूला सर, ए बी सर cos theta, can you tell me sir this plus this equal to this, what is the rule sir? Here a plus b equal to c means here alpha 0 degree, what is this? This is cos 0. a कितना, this is 7, b कितना, this is 3 and this is कितना 1, what is the answer? 21. in this case क्या चीज़ है, in this case sir a b sir sin theta, theta कितना, in this case sin 0 degree, this is n क्या, since this 0 the whole thing is 0. okay, I am giving simple another question, please see here. This is very very important. a plus b equal to c, a vector plus b vector equal to c vector. इसका मतलब क्या है, ये दोनों कंपोनेंट है, ये वाला रिजल्टेंट है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड दे दिया, ए दे दिया। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी इक्वल टू सी, वी हैव ऑलरेडी सीन, हम लोग देख लिया क्या है, ए वाला मैक्सिमम रिजल्टेंट। मैक्सिमम कब रिजल्टेंट होता है, जब दोनों को ऐड किया जाता है, उस टाइम अल्फा कितना सर 0 डिग्री। तो ए डॉट बी का क्या फार्मूला, ए बी कॉस 0 डिग्री, तो व्हाट इज दिस सर, कॉस 0 का वैल्यू 1, द आंसर इज 21। ए क्रॉस भी जब बोला जाएगा तो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ए वाला तो जैसा है वो रहेगा, लेकिन ए वाला साइन 0 डिग्री, ए वाला 0 डिग्री, साइन 0 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग another question and this is the last question for today. Suppose a equal to 11 and b equal to 7, c equal to 4, c equal to 4। यहाँ पे क्या चीज़ लिया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर। इन दिस केस सेम क्वेश्चन, ए वाला कितना, यहाँ पे ओ वाला सेम क्वेश्चन, ए दिस, ए वाला कितना, प्लीज सी हियर। इसका क्या फार्मूला, इस दोनों से क्या चीज़ मिल रहा है, सिंस इट इज़ द रिजल्टेंट हियर सी मिनिमम इक्वल टू सर ए माइनस बी। देखो ये क्या चीज़ है, ए 11 माइनस 7 दिस इक्वल टू 4। याद है सी मिनिमम कितना, अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर क्या आंसर होगा सर, ए बी सर कॉस अल्फा, अल्फा कितना 180 डिग्री, दिस इक्वल टू ए कितना सर 11, ए वाला कितना सर 7, ए वाला कॉस 180 डिग्री माइनस 1, तो माइनस 77, दिस इज द आंसर। इधर क्या है सर, ए वाला ए बी सर साइन 180 डिग्री इन कैप, साइन 180 डिग्री 0, ए वाला 0। ओके, आई एम गिविंग लास्ट क्वेश्चन, प्लीज सी हियर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ए वाला चीज़ दे दिया, क्वेश्चन प्लीज याद कर लो सर, ए क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू सी, ये चीज़ दे दिया, ए का मैग्नीट्यूड क्या दे दिया, ए का मैग्नीट्यूड 3 दे दिया, बी का मैग्नीट्यूड क्या दे दिया 4 दे दिया, एंड सी का मैग्नीट्यूड 5 दे दिया। ये कौन सा चीज़ है, ये वाला चीज़ वही है सर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। मतलब क्या है, एक है हेयर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या पूछा सर, ए कॉस ए डॉट बी पूछा, तो व्हाट इज दिस सर, ए बी कॉस कितना 90 डिग्री, सर इट इज 90 डिग्री, सर दिस इज 0। व्हाट इज दिस, ए क्रॉस बी, ए कितना है, व्हाट इज दिस सर, दिस इज ए बी साइन सर थीटा, साइन थीटा कितना 90 डिग्री, ए कितना बोल दिया सर, इट इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 1, सर दिस इज 12। आई थिंक this is sufficient for today. Okay, next class again there will be continuation of vector.